So audience, stay tuned. The event will be moderated by none other than Mr. Sanjay Jha, who is the editor for Z Business. NSE, as you all know, has emerged as world largest derivative exchange in terms of number of contracts traded. SEBI gave us a mandate to start commodity. We have been working on numerous initiatives, which include introduction of option contracts on spot prices and also the Indian gold standards. So I would like to invite Mr. Ravi Varanasi, the Chief Business Development Officer at NSE, for his welcome address. Thanks, Ashish. Mr. Surendra Mehta, Mr. Nitin Kedia, Mr. Kishore Narne, Mr. Kunal Shah, Mr. Abid Hussain, and our moderator, Mr. Jha. Ladies and gentlemen, I thank Mr. Jha, particularly his date of birthday. He made time for us and has agreed to moderate this session for us. Thank you very much, Mr. Jha. I welcome all of you to this Commodity Conclave 2020. The year so far has been a disaster, with the pandemic raging, healthcare systems under tremendous amount of pressure, economy is witnessing significant slowdown, and swathes of industry suffering huge damage. Situation is grim across the globe. Everyone is hoping for a vaccine to arrive quickly, which could allow us our lives as well as economies to bounce back to normalcy at the earliest. Markets have been rather robust during this period. That's a positive. And both equities, commodities markets have been doing rather well. As you all are aware, NSE has entered commodity derivatives markets less than 2 years back. So far, we have introduced products on gold, silver, and crude. We are in the process of launching our copper and degummed soya oil contracts shortly. In the short period, we are in the commodities market. We have tried to bring series of innovations. That has always been the hallmark of NSE from the time we were set up in 1994. The latest one is NSE refiner standards based on BIS standards. Over the last 17 years, Indian commodity derivatives exchanges have been allowing the delivery of only LBMA bars on the commodity exchanges. We have changed that starting from 1st of this month. Now we have accredited Indian refiners, and they will be able to deliver their gold bar on NSE from 1st of this month. It's a transformational shift in the direction of a clarion call given by our Honorable Prime Minister for Atmanirbhar Bharat. We have set up an elaborate process to ensure quality of gold is going to be delivered on our platform. We have instituted referee lab, black box testing. Idea is to ensure that whatever gold is getting delivered is of the quality which we have specified, and to establish and popularize BIS standard gold across the markets. We are working on similar standards for smaller denomination bars. We are also trying to bring in small denomination contracts that are easily accessible to small investors to accumulate gold over a period. Gold mini options, which we have introduced, have been doing reasonably well. We have seen fair amount of traction. We have seen a good build-up of interest touching about 700 kgs recently. We are working on a series of innovative products in metals, energy, agricultural sectors to bring about products that are relevant for hedgers and other financial participants. We believe Indian commodity derivatives markets potential has not been realized, despite the derivatives markets have been around for almost 17 years. Trading velocity for gold is just about 6 times the supply compared to almost 56 times in US. Similarly, silver at about 26 times compares very quickly with almost 129 in US. On agricultural front, the potential is enormous, but we have achieved what we have achieved so far has been exceedingly small. Deploying options to take the place of minimum support price system could dramatically change the way the farmer support systems work. There's work to be done here in creating the ecosystem of warehouses, assaying, financing, etc., which could potentially transform the way farmers sell their produce. These innovations would not only achieve government's goal of doubling the farmers' income by 2022-23, but also pave way for vibrant markets for agricultural produce, both spot as well as derivatives. We're working on multiple fronts, and we believe we will be able to contribute to making Indian commodity derivatives markets as large as equity derivatives markets, if not bigger, which is the case almost everywhere in the world. Commodity markets are usually much larger than equity markets.
we have to be there, and we believe we have the wisdom to do that. We have an eminent panel consisting of experts in commodity markets. I would not want to stand between their views and you. I hope all of you will benefit from the discussion that follows. Thank you very much, and thanks for joining this webinar. Okay, the theme of today's conclave is New Beginning to Commodity Market. India is primarily a commodity-based economy, and due to its relatively high consumption, as approximately 17.5% of world population is living in India. According to some estimates, the industry constitutes about 59% of India's total GDP. Without taking much time, let me introduce Mr. Jha. Mr. Jha, Mrityunjay Kumar Jha, is a famous TV anchor and is the Zee Business. He's with Zee Business as commodity editor. Mr. Jha, with his knowledge and expertise, will take over the platform from here, and there will be a panel discussion. Mr. Jha has promised us a few surprises for the audience. It's over to Mr. Jha. कमोडिटीज के ऊपर मैं काम करता आ रहा हूँ। आज जो आपने ये मुद्दा रखा है कि कमोडिटी मार्केट में ग्रोथ को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या नया इनोवेशन हो रहा है मार्केट में, और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब हम कर सकते हैं, इंडिया के अंदर कितना पोटेंशियल है और हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, और आगे चलकर हम इस पोटेंशियल को कितना ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि इससे पहले हमारे जो पैनल में शामिल लोग हैं उनका परिचय दे दिया गया है, तो मैं बहुत ज्यादा उसके वक्त जाया नहीं करूंगा और पैनल की शुरुआत करूंगा। और हमारे साथ तमाम बड़े पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन चूंकि अब ये एक बड़ा इनोवेटिव कदम उठाया गया है इंडिया में एनएससी की तरफ से, वो कदम ये है कि गोल्ड बार प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन गोल्ड रिफाइनर्स विल नाउ बी एक्सेप्टेड फॉर द डिलीवरी ऑन द एनएससी प्लेटफॉर्म। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम इसलिए है, कई मायनों में है। मैं इसे अगर 2 मिनट के लिए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ भी दूं, तो आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी और खास करके जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, उस दिशा में ये कितना बड़ा कदम है। और कभी कभी सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, एक इमोशन की बात भी है। भारत इतना बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं गोल्ड हम, लेकिन अभी भी जो हमारी डिपेंडेंसी है, चाहे वो प्राइस के ऊपर हो, चाहे वो प्योरिटी के ऊपर हो, वो विदेशों पर हमारी डिपेंडेंसी टिकी हुई है, जो कि हमारे लिए एक शर्मिंदगी वाली बात भी है। अब आप देखिए कि गोल्ड कंज्यूम हम करते हैं लेकिन सर्टिफिकेट हमने एलबीआई में देता है। ये कहां से ठीक बात है? गोल्ड कंज्यूम हम करते हैं, प्राइस हमारा तय करता है इंटरनेशनल मार्केट। तो इस दिशा में बहुत ही ऐतिहासिक कदम मैंने उठाया है। तो मेरा पहला सवाल रवि वाराणसी जी आपसे होगा कि एक आपने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है गुड गोल्ड डिलीवरी को लेकर के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितना बड़ा पोटेंशियल है हमारे मार्केट का, क्या उस पोटेंशियल डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे रिफाइनर्स इस वक्त सक्षम हैं, कैपेबल हैं, जितनी डिमांड हम देख पाएंगे उसको मीट करने के लिए, उस प्योरिटी को मीट करने के लिए? Yeah, I mean, we have close to about 25, 26 refiners who are accredited and who have licenses from BIS as well as NABL. They have been producing refining gold over the years. We think they have the capability, and the production numbers are fairly significant across all the 26 if we put together. We have accredited 4 of them already. We have brought them on board. They can deliver from 1st of September. We believe there are other refiners who are completing the paperwork, and they will be delivering. As far as the quality is concerned, the quality which prescriptions which BIS put together are on par with LBMA, if not better. So we think the quality wise, Indian refiners are doing a fantastic job. And just to ensure that quality, I mean, give the confidence to the market, we have instituted series of steps like referee labs, black box testing, and other areas, which will give the additional confidence to the market. The whole idea is to establish quality of Indian refiners. That's where we are putting a lot of effort. We are also trying to look at the responsible sourcing related areas, because that is one of the key asks from international market. So we are in the process of establishing the process which will help establish the sourcing guidelines and meet OECD and other international requirements. ओके तो ये आपने डिटेल में समझाया कि जो हमारे रिफाइनर्स हैं, इंडियन रिफाइनर्स हैं, वो कितने ज्यादा कैपेबल हैं इस नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये नई पहल हुई है एनएससी की तरफ से
उस दिशा में कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको आपने भी यहाँ पर बताया है। अब मेहता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और आपका जो संगठन है IBJ, इसमें इतनी वैरायटी है और इतने अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं कि आपको सारे फीडबैक, ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलते रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं बिल्कुल आसान भाषा में, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि देखिए ये काम इतना बड़ा है कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्शन को और इस मिथ को बदलना पड़ेगा कि LBMA अप्रूव गोल्ड ही प्योर गोल्ड होता है और BIS अप्रूव्ड गोल्ड में कोई दिक्कत होती है, या फिर जो इंडियन रिफाइनर है वहां पर प्योरिटी को लेकर कोई इश्यू होता है। इस माइंडसेट से निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि आसान भाषा में अगर आप हमारे ऑडियंस को इस वक्त अगर आप समझा पाए मेहता जी, ये जो एक नई पहल की गई है NSE की तरफ से, इससे ट्रेडर को, कंज्यूमर को और इन्वेस्टर को, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंड यूजर है यही लोग हैं, तो इनको क्या फायदा होने वाला है इस नई पहल से, NSE की इस नई पहल से? मृत्युंजय जी, बहुत ही अच्छा सवाल है यार, और आपके इस सवाल का जवाब देने के पे मेरे ख्याल से हम हिंदुस्तानी सभी लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यदि आप कौटिल्य अर्थशास्त्र देखें, जो अर्थशास्त्र उसको पढ़ो, तो आपको उसमें पता चलेगा कि सोने को लेकर उसमें बहुत सारे चैप्टर लिखे थे, और सोने की प्योरिटी को लेकर उसके अंदर बहुत सारे विश्लेषण किए हुए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। आज से करीबन मेरे ख्याल से 3,000 साल पहले की ये बात है, जब इस प्रकार की चीजें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी हुई थी। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग हर साल 3400 से 3500 सोने का कंजम्पशन होता है, जिसमें हिंदुस्तान का कंजम्पशन लगभग 800 से 900 टन होता है, और उस सोने की प्योरिटी और उस सोने का तय करने का अधिकार किसी फॉरेन कंट्री को दिया गया है। जब NSE के ऊपर सेबी ने ये लॉन्च किया था, इंडिया गुड डिलीवरी सिस्टम, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मोहंती साहब, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि LBMA सोने की वजह से बना है, सोना LBMA की वजह से नहीं बना है। ये बात हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी होगी कि सोना बिल्कुल सोना होता है, सिर्फ कोई संस्था उसको अप्रूव कर रही है कि हाँ ये प्योर है। तो क्यों LBMA अप्रूव करे, क्यों ना हिंदुस्तान की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारत सरकार, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो उसको सर्टिफाइड क्यों ना। हमारे पास 25,000 टन सोना, ऐसे कहते हैं कि हमारे पास 25,000 टन सोना है। उस सोने को सिस्टम में लाने के इंडिया गुड डिलीवरी रूल्स फॉर गोल्ड सबसे महत्वपूर्ण विषय था, और ये हमारे पूरे देश के अर्थशास्त्र को होने वाला है। ये सिर्फ किसी कंज्यूमर के बेनिफिट की बात नहीं है। जब ये 25,000 टन सोना जब वापस सिस्टम में आएगा इंडिया गुड डील के रूप में, तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव भारत के अर्थ में आने वाला है। जहां पे हम हर साल 4 लाख करोड़ का सोना इंपोर्ट करते हैं, तो मान लीजिए यदि हम उसमें से 1 लाख करोड़ का भी सोने का इंपोर्ट बचा पाए, तो ये कितना इंपोर्ट के ऊपर कितना बड़ा फर्क आएगा। तो ये देखने वाली बात है। तो नेचुरली ये तो एक क्या था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपने मानदंड जो तय किए हैं इंडिया डिलीवरी स्टैंडर्ड के, वो किसी मायने में LBMA के स्टैंडर्ड से कम नहीं है। बिल्कुल जो प्योरिटी उसी स्टैंडर्ड का मिलेगा। और जैसे कि रवि वाराणसी जी ने बताया कि हम रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मापदंड को जो एक वो विषय जो हमारा पहले रह जाता है, उसको भी हम धीरे धीरे अडॉप्ट करने वाले हैं। तो सरकार को, कंज्यूमर को इसका बहुत फायदा होने वाला है। और जहां तक डीलर की बात है, जब आप 300 टन का स्क्रैप का मार्केट है हल हिंदुस्तान में, वो सोना वापस रिफाइनर के पास जा गया गुड डिलीवरी के रूप में वापस सिस्टम में आएगा, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। हमारा इंपोर्ट कम होगा, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम होती जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत ही डिटेल में समझाया कि हम कितना बड़ा मार्केट बन सकते हैं और हमारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और ये चर्चा मैं जिस वक्त कर रहा हूं, तो ये मुझे एक ही बात कम लग रही है, लेकिन ये एक स्वदेशी स्वाभिमान की बात भी है कि हमारे देश में इतनी क्षमता होने के बाद, इतना पोटेंशियल होने के बाद भी हमारी डिपेंडेंसी कहीं और पर है और इसका फायदा कोई और उठा रहा है। चलिए अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि एक रिलेवेंट मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं,
और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, रिफाइनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो अभी जी मैं एक छोटा सवाल आपसे और पूछूं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हालांकि इस सवाल का जवाब देने के लिए अगर कोई रिफाइनर हमारे साथ होते तो ज्यादा माकूल होता, लेकिन कोई नहीं, आप क्योंकि इस मुद्दे को लगातार फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी कोविड पीरियड में जहां तक मैं डेटा देख पा रहा हूं कि जो हमारे 50% रिफाइनर्स हैं, उनका काम जो डोर की रिफाइनिंग करते हैं उनका काम इसलिए बंद हो गया है क्योंकि स्विट्जरलैंड से, घाना से, पेरू से हम जो है गोल्ड डोर का इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कामकाज बंद हो गया है। और दूसरी तरफ जो लोकेशन है हमारी रिफाइनरी का, अब वो लोकेशन ऐसी जगह है जहां से गोल्ड मार्केट की दूरी काफी ज्यादा है। साउथ में हमारा मार्केट गोल्ड का ज्यादा है, लेकिन जो गोल्ड रिफाइनरी का जो हमारा लोकेशन है वो उत्तराखंड में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है। तो क्या आपको लगता है कि इस दिशा में भी इसको भी मैच करने के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है? अभी तक तो जो भी रिफाइनर्स है स्पेसिफिक रीजंस के वजह से वो लोग डिफरेंट जगह में डाला है उन लोगों का रिफाइनरीज। जो हम सुन रहा है वो स्पेसिफिक टैक्स कंसेशंस जो भी है वो भी शायद सब जगह मिल रहा है अभी रिफाइनर्स को। और रिफाइनर्स अभी slowly trying to move their refineries to places where it is easily available. But moving gold across also is not that difficult. Logistically, there are sound logistic companies in the market who could kind of take gold from wherever it is produced to wherever it is required in terms of demand side. I think these issues are getting sorted out as we go forward. And we think the vaulting and logistics infrastructure is improving and has improved fairly significantly, and further will improve as we go forward. And that should really give a significant potential to ensure that we are able to take the gold where it is required from where it is being produced. चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है। और अब इस चर्चा को हम दो हिस्से में बांट रहे हैं। पहला हिस्सा हमारा अभी जो हम बात कर रहे हैं गोल्ड रिफाइनिंग को लेकर कि इसका कितना बड़ा मार्केट है, हमारे अंदर पोटेंशियल कितना ज्यादा है और हम इस मार्केट को किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा होगा हमारा गोल्ड फ्यूचर के ऊपर, गोल्ड ऑप्शन के ऊपर जो नए प्रोडक्ट एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इससे आपको कितना फायदा होगा। दूसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं, अगला सवाल लें। लेकिन एक छोटा सवाल निशांत मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर जरा बता पाए जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे अभी हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में, अगर एक मोटा मोटी आप डेटा बता पाए। सर मोर देन 250-300 people सर अभी पार्टिसिपेंट्स। तो इस वक्त 300 लोग हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि गोल्ड का जो मार्केट है इंडिया में वो किस तरह से बदल रहा है। अब किशोर जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, और हमने काफी चर्चा भी की है आपसे इस मुद्दे पर। एक छोटा रिएक्शन मेरा आपसे गोल्ड रिफाइनिंग को लेकर के ही है, और एनएससी की इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा इंडियन बुलियन मार्केट में? नितिन जी, यहाँ पे बेसिकली ये चीज है कि आप एलबीएम में रिफाइनरीज का ही गोल्ड जब अलाउ करते हैं, आप सेल साइड पे मार्केट को बहुत नैरो करते हैं कि वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स आप सेल साइड पे डिलीवरी दे सकते हैं। जो काफी लोग जो जैसा कुंदन होगा या जो भी इंडियन रिफाइनरी से एलबीएम में सर्टिफाइड नहीं है, उन लोग के पास मटेरियल है बट उन लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं। सो कमोडिटी मार्केट में एक बेसिक रूल ये होता है कि द कमोडिटी विच इज ट्रेडेड हैज टू बी चीपेस्ट टू डिलीवर, राइट? जो सबसे, बिकॉज कमोडिटी है ये, जहां पे सस्ता मिलता है वहां पे खरीद लेते हैं, इसमें कोई ब्रांड नहीं होता है, राइट? बट एलबीएम इज काइंड ऑफ ए ब्रांड। तो क्या होता है कि एलबीएम में डजंट डिसाइड, आप क्वालिटी डिसाइड नहीं करते, वो प्रोसेस डिसाइड करते हैं। आपका रिफाइनरी में प्रोसेस कैसा होता है, उन लोग ऑडिट करते हैं और सर्टिफाई करते हैं कि ये फलाना रिफाइनरी एलबीएम में सर्टिफाइड है इसका, बिकॉज इसका प्रोसेसेस हम लोग ने चेक किया, वेरीफाई किया। हर गोल्ड बार का उन लोग ने क्वालिटी वेरीफाई नहीं करते हैं। सो अगर उसी लेवल पे कोई इंडियन ऑडिटर्स या कोई क्वालिटी ऑडिटर्स यहाँ पे अगर सर्टिफाई कर सकते हैं कि ये फलाना रिफाइनरी जो बेसिक प्रोसेसेस है वो फॉलो कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे इट इज प्रोड्यूसिंग प्योर गोल्ड एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबली सोर्स्ड गोल्ड, सो फाइनल कंज्यूमर को ये गलत नहीं लगे कि कहीं ये गोल्ड स्मगल्ड गोल्ड तो नहीं है, ये गोल्ड कहीं मतलब इलीगली सोर्स्ड गोल्ड नहीं है। सो अगर वो सिस्टम नहीं आना चाहिए, सो फाइनली इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट कि देन वाइडर पार्टिसिपेशन आएगा। आपको बाई साइड पे रिटेल पार्टिसिपेशन होता है, सेल साइड पे आपको कॉर्पोरेट्स एंड रिफाइनरी पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, खास करके टुवर्ड्स एक्सपायरी। और जब एक्सपायरी होता है कि ये सवाल होता है कि फिजिकल मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट्स का जो प्राइस दोनों एक साथ मैरी होना चाहिए,
वो कई बार इंडियन प्रीमियम डिस्काउंट थोड़ा अलग रहता है, एलबीएम गोल्ड का प्राइस थोड़ा अलग रहता है, डोमेस्टिक गोल्ड का प्राइस थोड़ा अलग रहता है। वो शायद अभी वो गैप भी कम हो जाएगा, बिकॉज डोमेस्टिक गोल्ड आप डिलीवर कर पाएंगे तो आपका मार्केट एग्जैक्टली मैरी हो जाएगा। किशोर जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मुझे लगता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि आपसे क्या लिया जा रहा है, आपसे एलबीएमए के नाम पर आपसे प्रीमियम लिया जा रहा है। जो बात आपने कहा कि प्राइस में फर्क होता है, अगर आप ये बता पाए, ठीक है टेंटेटिव फिगर ही हो, कितना फर्क होता है जो एलबीएमए अप्रूव्ड गोल्ड होता है और जो हमारा डोमेस्टिक बीआईएस अप्रूव्ड गोल्ड होता है, उसके प्राइस में कितना फर्क होता है, ताकि हमें ये तो पता चले कि प्योरिटी के नाम से हमारी जेब कितनी काटी जा रही है। नहीं सी अमित जी, ऐसा होता है कि डोमेस्टिक में कभी कभार प्रीमियम चलता है 10 से 15-20 डॉलर का भी, और कभी कभी डिस्काउंट भी चलता है जो 20-25-50 डॉलर भी हो सकता है एक आउंस का गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड्स ऑन द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड। मैं स्क्रैप गोल्ड ज्यादा प्रोसेस कर रहा हूँ तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे अपने को इंडिया में सस्ता, मतलब इंडिया का पैरिटी जो प्राइस है वो आपको शायद $10 $15 नीचे मिल जाएगा। या बहुत ज्यादा बड़ा इंपोर्ट हो गया, डोमेस्टिक मेटल अवेलेबिलिटी ज्यादा है, रिफाइंड मेटल इंपोर्ट हो गया, तो वहां पे आपको डोमेस्टिक प्रीमियम कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं सब ब्रांड का, बिकॉज कमोडिटी आप ब्रांड का पैसा चार्ज नहीं कर पाएंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक मार्केट में आपको एटलीस्ट 30-40% डोमेस्टिक रिफाइंड मेटल आउट ऑफ एलबीएमए व्यू है, वो मेटल का जो प्राइसिंग है वो थोड़ा अलग होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक आउंस पे शायद $5-10 का फर्क पड़ता है। ठीक है, नहीं मेहता जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा किशोर ने छेड़ा और मैं चाहता हूं कि आप इसको और ज्यादा तस्वीर साफ कर पाएंगे, क्योंकि आप ज्वेलर के साथ आप लगातार जुड़े रहते हैं। आप बताएं, क्योंकि मैं कंज्यूमर के लिए आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना है कि एलबीएमए क्या है, बीआईएस क्या है, लेकिन जब एक कंज्यूमर होने के नाते कोई गोल्ड खरीदने जा रहा है और जब अब एनएससी ने ये नई पहल की है, अब एनएससी की जब डिलीवरी होगी बीआईएस गोल्ड वाली और जब ज्वेलर उसका फायदा उठाएंगे, तो क्या वो गोल्ड हमें अभी जो इंपोर्टेड गोल्ड है और जिस प्राइस पे हमें मिलता है, क्या उसके प्राइस में कुछ फर्क होगा, ज्वेलर को कुछ सस्ता मिलेगा कंपेयर टू जो इंपोर्ट करते हैं और जो एलबीएमए अप्रूव्ड गोल्ड है? अजय जी, इसके लिए हमें गोल्ड की और जो गोल्ड जिससे बने डोरे उसके ड्यूटी स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। हमारा जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो हम एलबीएमए गोल्ड इंपोर्ट करते हैं या कोई भी गोल्ड हम डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो 12.5% ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, और यदि यहाँ पे डे मंगा के उसको रिफाइन किया जाता है तो ये 0.65% सरकार बेनिफिट देती है कि क्योंकि हिंदुस्तान में डोरे लाकर गोल्ड को रिफाइन कर रहे हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंडस्ट्री कर रहे हैं, तो आपको 0.65% आपको बेनिफिट दिया जाता है। उसमें से 0.35% जितना खर्चा है, 0.3% मतलब लगभग 1 किलो पे, यदि आप 1 किलो का 50 लाख का भाव गिने तो लगभग 15,000 रुपए का इंडियन गोल्ड और इंपोर्टेड गोल्ड में फर्क होना चाहिए। लेकिन जैसे किशोर जी ने कहा, बिल्कुल जैसे किशोर जी ने कहा, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। वो मेहता जी, वो अलग मुद्दा है, डिमांड सप्लाई के आधार पे प्राइस ऊपर नीचे हो उसका अलग हिसाब किताब है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है उस सर्टिफिकेट की कितनी कीमत है, एलबीएमए का जो सर्टिफिकेट है उसकी कीमत है कितनी है, और बीआईएस का जो आप सर्टिफिकेट होगा, हमारा अपना सर्टिफिकेट होगा, उसकी कीमत क्या होगी? मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, इसका क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो डिमांड सप्लाई चलता रहेगा सर। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, दोनों के ड्यूटी डिफरेंशियल में लगभग 15,000 रुपए का फाइनली जब प्राइसिंग होगा तो डिपेंड होगा, और वो डिफरेंस धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि इंपोर्टेड बार इंडिया में वो भी उनको अकाउंट पे बेचना। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंशियल हट जाए, क्योंकि नहीं तो उनके बाहर बिकने ही बंद है। बिल्कुल, ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई और एक तस्वीर तो साफ हुई कि फायदा क्या होगा। फायदा सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको बीआईएस अप्रूव्ड और डोमेस्टिक गोल्ड मिलेगा, बल्कि प्राइस में भी फर्क होगा। ये तस्वीर अब तक सामने है। तो ये पहले दौर की चर्चा हुई कि जो गुड डिलीवरी है इंडियन गोल्ड रिफाइनर्स को लेकर के जो बात यहाँ पर हुई है, जो एनएससी ने पहल की है, इसका कितना बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में होने वाला। हालांकि ये ऐसा मुद्दा है जिसपे आप अभी 2-3 घंटे भी चर्चा कर लें तो ये कम होगा, लेकिन चूंकि वक्त की पाबंदी है, अब हम चर्चा के दूसरे दौर में आएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे इस वक्त के ऑडियंस हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक सवाल भी है और बीच बीच में हम सवाल भी पूछ रहे हैं ताकि हमें अंदाजा लगे कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं,
वो कितने अवेयर हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के। तो मैं निशान से गुजारिश करूंगा कि वो सवाल आप जरा स्क्रीन पर लाएं और फिर देखते हैं कि इसका जवाब किस तरह से हमारे ऑडियंस की तरफ से आता है। निशान। थैंक यू सर। सर स्क्रीन विजिबल है आपको? यस यस, ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सर जो आप इतना लाइव इस सेशन को सर पूरा कैरी कर रहे हैं। तो वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द पार्टिसिपेंट्स, एंड ये सरप्राइज क्विज है, साथ में प्राइज भी जरूर है इसके साथ में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विद सम कंडीशंस, सो straight away coming on my first question, what is the first exchange to launch gold mini contract and what is the lot size? यस, अब ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सचेंज टू लॉन्च गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द लॉट साइज? पहला एक्सचेंज कौन सा है जिसने गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है और उसमें लॉट साइज क्या है? ये आप पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और अब आपके जवाब का इंतजार। रिक्वेस्ट है आप अपना नाम और ईमेल आईडी सिर्फ चैट बॉक्स में लिख के हमको डाल दीजिए, वहां से हम जो भी लकी विनर है उनका नाम और ईमेल आईडी हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर एंड द नेम इज मिस्टर प्रत्युष सर। ओके, तो प्रत्युष ने सही जवाब आंसर क्या है? द एक्सचेंज इज NSE and 100 grams। यस, गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन प्रत्युष। आपने सही आंसर ही नहीं दिया है बल्कि आपने सबसे पहले आंसर दिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप विजेता हैं इस सवाल के। प्रत्युष को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन आपको ढेर सारा। चलिए आगे हम कुछ और सवाल लेंगे, इंटरेस्टिंग सवाल हैं, तो आप अपने माइंड को थोड़ा खुला रखें, कभी भी सवाल आपके बीच में आ सकता है। लेकिन तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे दौर की चर्चा हम शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे, एक तो गोल्ड रिफाइनिंग की बात हुई, अब हम बात करेंगे गोल्ड ऑप्शन की, और फिर हम आएंगे कि प्राइस मूवमेंट आगे क्या होने वाला है। उसके ऊपर तो हम रोज बात कर रहे हैं आजकल, लेकिन अब जो एक नया प्रोडक्ट आपके सामने आया है, एक नया टूल आया है ट्रेड का, वो है गोल्ड ऑप्शन। और गोल्ड के ऑप्शन के मास्टर, गोल्ड ऑप्शन की बारीकियों को डिटेल में समझने के, हमारे साथ जितने भी इस वक्त पैनल में जुड़े हैं सब गोल्ड ऑप्शन की बारीकियों को समझते हैं, लेकिन गोल्ड ऑप्शन पर खास पकड़ रखने वाले हमारे साथ आबिद हैं सेंसिबल के। आबिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से गोल्ड का मार्केट हाल के दिनों में फ्लक्चुएट किया है, काफी ज्यादा हमने वोलेटाइल मार्केट देखा है, गोल्ड का काफी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है, ऐसे हालात में गोल्ड ऑप्शन में क्या आपको लगता है कि ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा सेफ है? Thank you, Ritesh. That's a great question. So, at our line of work, right, we see a lot of interest by retail investors when it comes to trading gold options. And see, here's the thing, right? If I were to say one thing and one thing alone to all the small traders around, I would always say it's always better for them to trade in options. And there's a very simple reason why I'm saying this. Right? So whenever we look at trades, right, we see that on an average 60 to 70% of the trades done by a retail investor is actually profitable. मतलब एक आदमी ने अगर 10 ट्रेड डाला है, उसमें 7 या 6 में वो प्रॉफिट बुक कर ही लेता है। बट प्रॉब्लम है कि ओवरऑल अगर वो 100 ट्रेड डालता है, हालांकि उसका 70 ट्रेड सही जाता है, फिर भी उसका ओवरऑल लॉस ही होता है। तो then we started digging into what is actually happening here, right? And then we realized this. People basically don't hit stop loss, right? They have no concept of the stop loss. So they just leave their position open. So all their profits are very small, they're tiny, it's very tiny, they get out quickly. And if there is a huge loss, they fundamentally don't get out of the loss. I mean, there is a huge body of psychological evidence why this happens, which we don't get into. But because of the simple reason, right, if you are trading futures, the reality is you don't have any risk management other than the fact that if you are aware enough and if you're disciplined enough, you might just hit a stop loss. But then again, this is extremely demanding for even most of the institutional traders. And retail investors hitting a stop loss is something which you can practically forget about. They hit a stop loss only when they have to, when margin call exceeds their capital extra. So here's the thing, right? Now let's just quickly look at one chart of gold. Right? So I'll just, you can see my screen, right? So here's the thing, right? Now, if you are a retail investor, these red candles are not the days when you want to be long a future, or even these green candles are not the days where you want to be short a future. Now, the thing is, if you as a retail investor are finding yourself in one of these situations, basically you're toast.
Now, the good thing about option is, I mean, I'm just illustrating the payoff of a future using Nifty because I don't have the gold chart yet on the option scale. So on a day, if gold crashes, let's say 4%, you're down by around, so that's the equivalent of 11,000 Nifty. On Nifty's lot size itself, you're down 34K, right? Whereas if somebody does an option on the same move, he's only down, let's say 14K. But here's the best part, right? If somebody does an option strategy like a covered call or a call spread or a put spread, for the same kind of movement, he's only down, let's say 7,000, right? So because of a simple highlight, which is the fact that options or option strategies mostly come with risk management. They allow retail investors to stay in the game, stay alive. Because if you're alive, you'll eventually figure out how to make money. But in case you're caught in one of those crazy market conditions where future moves like 5-6%, your entire capital is wiped out, which therefore renders the fact that, futures are not really for retail investors. They should always be doing a spread or an option strategy in which losses are limited. So this is one of the reasons why I'm super happy that options are coming along, and this is the way to go. ठीक है, तो ये आपने डिटेल में समझा कि ऑप्शन का ट्रेड क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। नितिन केडिया जी, अब मैं आपके बताना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं कि जो एनएससी के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड का ऑप्शन लॉन्च हुआ है, इससे जो रिटेल प्लेयर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, जो छोटे ट्रेड करने वाले लोग हैं गोल्ड में, उनके लिए ये कितना ज्यादा फायदेमंद है? थैंक्स मिथुन जी। मिथुन जी, महीने में ना 4 इवेंट ऐसे होते हैं जिस दिन गोल्ड का वोलेटिलिटी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, जिसमें से 2 फ्राइडेज हैं, जिसमें अगर पहले फ्राइडे की बात करूं तो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आता है, और अगर लास्ट फ्राइडे की बात करूं तो यूएस जीडीपी डेटा होता है। ये तो 2 इवेंट हैं जो होने ही होने हैं। इसके अलावा मंथ में क्या होता है, कभी ईसीबी का मीटिंग होता है, कभी आपका फेडरल बैंक का मीटिंग होता है, कभी कोई स्पीच होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि ये सी जब भी खत्म होगी या ये इवेंट जब भी होगा तो एक बड़ी वोलेटिलिटी आएगी। अनफॉर्चुनेटली जब आप फ्यूचर्स में काम करते हो तो जैसा आबिद जी ने यहाँ पे भी पे ऑफ दिखाया, तो रिस्क इतना बड़ा होता है कि कई बार लोग पोजीशंस नहीं ले पाते। 3 महीने से जब से एनएससी में गोल्ड मिनी ऑप्शन शुरू किए, वो स्ट्रैटेजी हम अपने रिटेल क्लाइंट्स को जो सजेस्ट करते हैं, हम ये सजेस्ट करते हैं यूएस नॉन फॉर्म पेरोल डेटा 6 बजे आने वाला है, आप 5:45 PM पे आप एक स्ट्रैडल ले लीजिए, ठीक है, स्ट्रैडल बेच दीजिए आप, सॉरी, और वो स्ट्रैडल का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हमने देखा है कि 11 बजे तक रात को जब एनएससी बंद होने वाला होता है डे के लिए, तब तक वोलेटिलिटी कम हो चुकी होती है, इवेंट का इम्पैक्ट जा चुका होता है और क्लाइंट को जो है वो पैसा बच जाता है। तो आप क्योंकि महीने के स्टार्टिंग में आपको प्रीमियम अच्छा मिलता है, आप स्ट्रैडल बेचते हो, महीने के लास्ट में आप स्ट्रैंगल बेचते हो, तो रिटेल इन्वेस्टर को एक फायदा तो ये मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि सपोज अभी हम अगर पिछले अगर मैं सितंबर मंथ को छोड़ दूं तो हर एक मंथ में $200 ऊपर और $200 नीचे का मूवमेंट आया है, जिसको मैं अगर इंडियन मनी में ट्रांसलेट करूं तो विच इज समवेयर अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज ऑन आइदर साइड। अगर मैं दोनों साइड का मंथ के स्टार्टिंग में ऑप्शन खरीद लेता हूं तो मेरा 1,000 रुपीज से 100 रुपीज का प्रीमियम मिलता है, देना पड़ता है मुझे, और उसके सामने 4,000 5,000 का एक्सपेक्टेशन है, तो 1:4 का रेशियो है। और अगर 1 मिनट का टाइम और दे तो मैं आपके फर्स्ट राउंड में फिर से बैक करना चाह रहा था। अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर थोड़ा छोटा रखेंगे तो आगे थोड़ा वक्त मिलेगा हमें। जी मैंने सर कई सारे ज्वेलर्स से बात करी जो इंडिया गुड डिलीवरी जब से लॉन्च हुआ एनएससी के अंदर, और काफी बड़े बड़े लोगों से भी बात करी, काफी छोटे ज्वेलर्स से भी बात करी, सबका एक ही फीडबैक था, आज तक किसी कस्टमर ने मेरे को ये नहीं बोला कि मुझे एलबीए में गोल्ड से बनी ज्वेलरी चाहिए। वो 22 कैरेट 18 कैरेट मेरे से पूछता है, तो मैं जब ज्वेलर अपने मैन्युफैक्चरर से ज्वेलरी बनवाता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो एलबीए में बाहर है या इंडिया का बाहर है, मुझे प्योरिटी से मतलब है। मेरा मैन्युफैक्चरर से 995 का बार मांगता है, वो मैं उसको देता हूं। थोड़ा सा बाजार के अंदर लोकल बार जब आप लेते हो तो क्वालिटी को लेकर आपकी टेंशन होती है, बट जब आप एनएससी के प्लेटफॉर्म से ले रहे हो तो आपका वो क्वालिटी का टेंशन दूर हो जाए। दिस इज अ फीडबैक व्हिच आई हैव रिसीव्ड। थैंक यू। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, खास करके जो छोटे ज्वेलर हैं उनके लिए तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ही जो एनएससी पर ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि रिटेल प्लेयर्स को क्या फायदा होगा ऑप्शन में, तो मैं अब आबिद आपसे जानना चाहता हूं कि रिटेल की तो बात हमने कर ली, लेकिन जो बुलियन डीलर्स हैं उनके लिए क्या है ऑप्शन में? Okay, so bullion dealers के लिए, see the thing is for bullion dealers, the biggest risk they are facing is a sudden up move in the price of gold, right? Because mostly they end up buying gold and keeping it with them. Now the problem is
if the gold price, I mean, for whatever reason, the spot surges heavily, right, which can happen now given that, it's, so one of the problems, of course, we face is the price of gold is connected invariably to the price of the dollar. And if dollar index is going one way up or down, it also affects gold prices too. Now, the fact is, there are two things at play here, right? One is gold against dollar, and then there's dollar against rupee. So any kind of movement can just double whammy the thing, and the price movement on the upside can be very bad. Now, if I'm a gold dealer, the thing which I'm very worried about will be that gold can give a sudden up move, and that can in fact increase the price at which I'm picking up gold. So one of the things I can do is I'll probably always be long some OTM option. Basically, ऊपर का call OTM मैं खरीद लूंगा, मेरे पास रख लूंगा. It's like a very small insurance cost I'm paying. This quarter perhaps, and I'm wondering that there is something very wrong. And I would keep that in case dollar gold surges heavily. This will actually help me reduce the procurement cost of my gold. ओके फाइन, ये आपने बहुत बढ़िया समझाया कि बुलियन डीलर्स को क्या फायदा होने वाला है। और अब मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं, उससे पहले एक सवाल हमारे ऑडियंस के लिए और है, और वो सवाल आपके लिए निशांत ला रहे हैं स्क्रीन पर, और आप अपना नाम बताएं और फिर उस चैट बॉक्स में उसका जवाब लिखें। तो ये जवाब, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आप निशांत, प्लीज, ओवर टू यू। और ये दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर It is the first company that featured in the Forbes 500 list. First option is TCS, second Infosys, third is Reliance. So we are just waiting for the answer. Participants, please आप अपना नाम और email ID दोनों साथ में भेजिएगा with the answer. सवाल एक बार आप और सुन लें, समझ लें। Which is the first Indian company that featured in the Forbes 500 list? भारत की ऐसी कौन सी पहली कंपनी है जो जिसने फोर्ब्स 500 लिस्ट में जगह पाई है? ऑप्शन आपके पास तीन है, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस। Okay, so answer आ चुका है सर, and the name is Mr. शुभम प्रभाकर. Answers हम आपको इसके बाद में बताएंगे लास्ट में, so we have to keep that secret, but सही आंसर दिया है मिस्टर शुभम प्रभाकर ने सर। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर शुभम, आपको सही जवाब और सबसे पहले जवाब देने के लिए। आगे हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन अब मैं लौटता हूं अगले सवाल पर, और हम बात कर रहे हैं अभी ऑप्शन की। ऑप्शन में हमने बात कर ली कि रिटेल प्लेयर्स को क्या फायदा होने वाला है एनएससी के प्लेटफॉर्म पर जब आप गोल्ड के ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, गोल्ड मिनी के ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। डीलर्स को क्या फायदा होने वाला है, लेकिन ये तो ऑप्शन की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जो एनएससी पर ऑप्शन लॉन्च हुआ है उसमें एक बड़ा फीचर जो आया है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और किशोर जी, मेरा आपसे उसी के ऊपर सवाल होगा कि ये डिलीवरी वाला ऑप्शन है और जो कि स्पॉट प्राइस पर सेटल होगा, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा और ये कितना बड़ा फीचर है इस ऑप्शन? सुपर ऑप्शन से, जैसा आपका जो ऑप्शन का जो पोजीशन है फ्यूचर एक्सपायरी से कुछ दिन पहले, मतलब 3 से 4 वर्किंग डेज से पहले आपको ऑप्शन फ्यूचर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वापस फ्यूचर का सेटलमेंट में चले जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है रिटेल के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज उनको ये पता नहीं कि उस दिन मेरा अगर ऑप्शन इन द मनी रहेगा तो मेरा कन्वर्ट होगा, एट द मनी रहेगा तो मेरा ऑप्शन करना पड़ेगा, देन आउट ऑफ द मनी रहेगा तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन से मैं अगर ऑप्शन खरीदा है, मैंने प्रीमियम भर के खरीदा है, अगले दिन जब मेरा ऑप्शन फ्यूचर में कन्वर्ट होता है, मेरा पूरा फ्यूचर का मार्जिन देना पड़ता है। तो एक दिन में उसको बहुत बड़ा मार्जिन कॉल आ जाता है, उसके बाद उसका वो मार्जिन कॉल भरने का कैपेसिटी रहेगा तो उसका फ्यूचर कंटिन्यू होता है, अदरवाइज उसी दिन कट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑन गुड्स जो नया कॉन्सेप्ट है ऑप्शन ऑन गुड्स का, कि जो आपका सीधा ऑप्शन डिलीवरी में कन्वर्ट होता है, सीधा ऑप्शन लास्ट डे पे डिलीवरी में कन्वर्ट होता है। डिलीवरी के लिए भी अगेन 3 ऑप्शन से, आपका आउट ऑफ द मनी है, ऐसा भी आपका ऑप्शन वैल्यू 0 हो गया, आपका कट गया। आपका इन द मनी है तो आपका ऑप्शन वैल्यू डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आपको एट द मनी, नियर द मनी है तो आपको ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हैं, आप डिलीवरी लो कि आप 0 में सरेंडर कर दें। सो आई थिंक ये लास्ट तक आपको, बिकॉज आपको फ्यूचर ऑप्शन फ्यूचर्स पे है, तो आपको जो एक्चुअल फ्यूचर एक्सपायरी है, अगर 5 अक्टूबर का एक्सपायरी आप समझ लीजिए, अक्टूबर वायदा का, तो आपको 24 या 25 सितंबर को आपको काटना पड़ेगा पोजीशन। आई थिंक लास्ट 10 दिन का आपको पोजीशन नहीं रख सकते हैं, बिकॉज आपको फ्यूचर में कन्वर्ट होता है, फ्यूचर वापस डिलीवरी में चले जाते हैं।
जहां तक ऑप्शनल गुड्स है, आप लास्ट वर्किंग डे का क्लोजिंग से पहले आप कभी भी काट सकते हैं, तो आप लास्ट तक लेके जा सकते हैं, आप ऑप्शन को पूरा टाइम वैल्यू का आपका यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एक फायदा है। नंबर 2, इसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, आपका मार्जिन फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। हाँ, ये बहुत ही विस्तार से किशोर जी ने समझाया कि ऑप्शन डिलीवरी वाले ऑप्शन के क्या फायदे हैं। अब जब मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा था तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि 2 पार्ट में चर्चा होगी। पहला पार्ट डिलीवरी के ऊपर, रिफाइनिंग के ऊपर बात होगी और दूसरे पार्ट में ऑप्शन के ऊपर। लेकिन जब आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं और जब टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग होता है तो ये पार्ट 2 की जगह पार्ट 3 हो चुका है। 3 पार्ट में ये डिस्कशन बदल चुका है और तीसरा पार्ट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो पार्ट है गोल्ड की प्राइसिंग को लेकर। और गोल्ड के प्राइस की जब हम बात करते हैं, आप यकीन मानिए अपने कमोडिटी शो में रोज इसकी चर्चा करते हैं, तो जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो तो जुड़ते ही हैं और हर आदमी, देश का हर आदमी, भले ही वो गोल्ड खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन गोल्ड प्राइस को लेकर उनके मन में हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि प्राइस क्या होने वाला है, वो जाने। तो प्राइस के ऊपर सबकी नजर रहती है और हम तीसरे और आखिरी दौर में प्राइस के ऊपर ही बात करेंगे। और प्राइस पर बात करने के लिए वैसे हमारे जो सारे एक्सपर्ट हैं वो प्राइस के भी मास्टर हैं, लेकिन 2 खास एक्सपर्ट हैं प्राइस के ऊपर बात करने के लिए। एक तो कुणाल शाह हैं जो न सिर्फ घरेलू बाजार पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। जितना वो यहाँ की जीडीपी पे पकड़ रखते हैं उतना ज्यादा ट्रंप के ट्वीट पे भी पकड़ रखते हैं। तो उनसे हम समझेंगे कि आखिर गोल्ड में होने क्या वाला है। और मेहता जी, सुरेंद्र मेहता जी, जो कि हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और गोल्ड के ऊपर इन्होंने अब तक जो भी फोरकास्ट दिया है वो बिल्कुल 100% सही हुआ है। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक तीसरा सवाल भी ले लें, फिर हम तीसरे दौर की चर्चा शुरू करें। तो निशांत, आपसे गुजारिश है कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर लाएं प्लीज। How many refiners are empaneled under Indian gold delivery? इसमें ऑप्शंस नहीं है सर, ये डिस्कस हो चुका है। जिन लोगों ने ठीक से सुना होगा उनको याद होगा, जिन लोगों ने रवि जी को शुरुआत में अगर ठीक से सुना होगा तो उनको आंसर मिल गया होगा। तो ये क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है कि हाउ मेनी रिफाइनर्स आर इम्पैनल्ड अंडर इंडियन गोल्ड डिलीवरी। कितने जो रिफाइनर्स हैं वो गोल्ड डिलीवरी के तहत इम्पैनल्ड हुए हैं। तो अगर आपने रवि जी को ठीक से सुना होगा तो इसका जवाब आपको मिल सकता है। सो इंडियन गुड डिलीवरी के अंदर हमारे पास एक आंसर आ चुका है सर, एंड उनका नाम है मिस्टर अंकित सिंह। ओके, फाइन। तो बहुत बहुत बधाई अंकित, मेनी कांग्रेचुलेशन आपको। और आगे जवाब भी बताएंगे निशांत कार्यक्रम के आखिर में। लेकिन अब मैं लौटता हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर। कार्यक्रम का आखिरी दौर है और अब हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड प्राइसिंग को लेकर। कुणाल शाह जी, अब आप बताएं कि जितने भी फंडामेंटल गोल्ड के सामने आने चाहिए थे, आने वाले थे, वो फंडामेंटल आ चुके हैं। दुनिया को लेकर दुनिया की इकोनॉमिक हालत खराब है, गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग हमने देख ली है, जबरदस्त डिमांड गोल्ड में हमने देखी और यही वजह है कि गोल्ड ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई को छुआ। अब यहां से गोल्ड का प्राइस आगे क्या होने वाला है? क्या किसी नई खबर, किसी नए फंडामेंटल की तलाश में है गोल्ड? क्या देख रहे हैं प्राइस आप आगे? Yeah. So, Nitinji ji, first of all, happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. So, for start of the year से जो हमने गोल्ड में जो रन देखा था, बुल रन, that was too fast. So, हमने आज अगर आप लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपने कभी भी 6 महीने में गोल्ड में 36-37% के रिटर्न डिलीवर करते देखा नहीं. So finally, gold market is cooling off. So this is a healthy correction which is taking place in gold. अगर आगे के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो आगे की फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं. सो शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में शायद मार्केट एकदम एब्रप्टली ना बढ़ जाए, बट 1.5 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन गोल्ड के प्राइसेस धीरे धीरे $2100 से $2200 के लेवल आपको दिखा सकता है. जब भी एक लास्ट डिक्लाइन, जब वैक्सीन का अनाउंसमेंट होता है तो आपको एक लास्ट डिक्लाइन देखने मिल सकती है गोल्ड में. दैट वुड बी अगेन अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे जाके हम जो अभी फिलहाल हेल्थ क्राइसिस देख रहे हैं, सो उसके बाद जो नई क्राइसिस जो आएगी सामने वो है इकोनॉमीज रिकवर कैसे करती है. क्योंकि अभी फिलहाल लिक्विडिटी इंजेक्शन डाल के सेंट्रल बैंक्स ने मार्केट्स को मैनेज कर लिया है, बट इकोनॉमी को धीरे धीरे प्री कोविड लेवल पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा. और ये एक बहुत बड़ा रीजन है गोल्ड के लिए आउट परफॉर्म करने का.
आज वेस्टर्न अगर आप मनी मैनेजर्स को देखेंगे लास्ट 6-8 महीने में जो पूरा गोल्ड का जो ओवरऑल अलोकेशन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ डाइवर्ट हो चुका है. सो वेस्टर्न मनी मैनेजर्स आर एग्रेसिवली बाइंग गोल्ड बिकॉज दे नो दैट द इंटरेस्ट रेट ओवर देयर आर नॉट गोइंग टू गो अप. जैसे जापान की आज से 3 डेकेड में जापान डिफ्लेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है. तो यूएस की भी आज ऐसी फियर है कि क्या यूएस में भी ऐसा ही सिमिलर स्टेट होगा. अगर ऐसा होता है तो आपको अगर आपके फिक्स सेविंग अकाउंट पे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है तो आप कौन सा असेट सिलेक्ट करेंगे जहां पे प्रोटेक्शन भी है और रिटर्न भी है. कुणाल जी ये बात तो ठीक है आकर कि जब आपके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे तो आप कहाँ लगाएंगे पैसा. लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि सेविंग अकाउंट में रखने के लिए पहले पैसे होंगे तब तो आप इंटरेस्ट की बात करेंगे. नौकरियां जा रही हैं, जीडीपी माइनस में है दुनिया की तमाम बड़े देशों की. तो जब नौकरियां नहीं होंगी, जब पैसे ही नहीं होंगे, जब खाने के पैसे नहीं होंगे तो इन्वेस्ट करने के पैसे कहां से आएंगे. बहुत अच्छा सवाल है. पैसे तो अगर आप देखिए अभी यूएस में भी क्या हुआ है, लास्ट 6 महीने में यूएस की गवर्नमेंट पैसे दे रहे हैं स्पेंडिंग करने के लिए. सो सब इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, पर हम जब यूएस की बात करेंगे तो यूएस में, यूरोप में सब गवर्नमेंट्स आर बेसिकली गिविंग मनी टू स्पेंड. सो अगर आपके जॉब चला जाए तो गवर्नमेंट आपको पैसे दे रहा है सपोर्ट के लिए एंड दैट अमाउंट इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट. सो ये लेवल का मॉनेटरी ईजिंग आज तक इतिहास, फाइनेंशियल मार्केट के इतिहास में हुआ नहीं है. सो इसका आगे जाके जो रिपरकशन आएंगे वो गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है बिकॉज आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाने वाली है. सो आपका रुपया, आपका डॉलर, आपका ये पैसे की वैल्यू कम होने वाली है. तो हार्ड असेट्स जो भी कमोडिटी, मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कमोडिटी एज एन हार्ड असेट, ये असेट क्लास की वैल्यू बढ़ने वाली है. इसके लिए धीरे धीरे प्राइस बढ़े. सो बहुत ब्राइट लग रहा है गोल्ड का आउटलुक. ये अपॉर्चुनिटी रहेगी जो लोगों ने मिस कर दिया है. 49,000 से लेके 50,000 के बीच में गोल्ड आता है, वहां पे आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए और आपको फिर से गोल्ड के भाव 2 साल के 1.5 से 2 साल में कंजर्वेटिवली 50,000 to 60,000 के लेवल दिखा सकता है. ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी है, सारे फंडामेंटल गोल्ड के पक्ष में है, फेवर में है. वो बात सही भी है. जब दुनिया के आर्थिक हालात खराब होते हैं या फिर राजनीतिक हालात भी खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर, सेफ हेवन बाइंग के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है. और हमने देखा भी है हाल के दिनों में जिस तरह से गोल्ड के मार्केट ने बिहेव किया है. मेहता जी, आपका क्या आउटलुक में कुछ बदलाव हुआ है गोल्ड प्राइस के आउटलुक में, या आप भी इस बात पर मजबूती से अड़े हुए हैं कि आगे गोल्ड में तेजी ही रहेगी, भले ही वैक्सीन आ जाए और भले ही 1 नवंबर को अमेरिका में इसकी शुरुआत हो जाए, लेकिन इसका कोई फर्क गोल्ड प्राइस पर नहीं पड़ने वाला है अभी? इनिशियली तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा वरी है वो इस वक्त ये है कि रुपया एप्रिशिएट हो रहा है. हम 76 $1 76 पे अब 73 तक हम देख चुके हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये और रुपए एप्रिशिएट होते होते 71 या हो सकता है सर 50 तक भी चला जाए. ये गोल्ड के प्राइस को हिंदुस्तान में प्रेशर में लेकर आएगा. भले ही गोल्ड का प्राइस यहाँ से $2,100 हो जाए, लेकिन एप्रिसिएशन इन रुपी गोल्ड के प्राइस को चेक रखें. जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी किसी भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में यदि पैसा मुफ्त मिलेगा तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी. तो एक जो सवाल था कि पैसे ही नहीं है, पैसे सरकार ही देगी आपको खरीदने के लिए, आपको कहीं से पैसे लाने की जरूरत. चलिए, फिर तो बढ़िया है, बढ़िया. चलिए, बिल्कुल अब वक्त है 1 मिनट से 2 मिनट का वक्त है हमारे पास और रैपिड फायर राउंड खेलते हैं फटाफट. नितिन जी, आपसे शुरुआत करते हैं इस राउंड की. फटाफट बताएं, साल के अंत तक गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है? Look forward for 54,000 to 54,500. ओके, किशोर जी, ईयर एंड तक गोल्ड का प्राइस? ईयर एंड तक 55,000. 55. अभी I think 56, 57. ओके, कुणाल जी, ईयर एंड तक आपके हिसाब से गोल्ड प्राइस? 55,500. मेहता जी, एक टारगेट आप ही दे दें सर ईयर एंड तक के लिए. मेरा टारगेट ईयर एंड के लिए 54,500. ओके, तो मतलब 55,000 का टारगेट आ रहा है ईयर एंड तक के लिए और बहुत वक्त बचा नहीं है. सितंबर, ऑलरेडी हम सितंबर के महीने में हैं, तो 3-3.5 महीने का वक्त बचा है. तो अगर आपके लिए ये है कि गोल्ड में अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलने वाला है, तेजी है, फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के, ट्रेड करने के आपके पास कई तरीके हैं. एक तो फ्यूचर मार्केट है जिसका जिक्र भी हमने किया, ऑप्शन का एक मार्केट, नया मार्केट आपके सामने आया जहां पर आपका रिस्क भी कम है, कम रिस्क में आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. ये गोल्ड ऑप्शन की नई खासियत है.
और जो कंज्यूमर हैं, जो ज्वेलर हैं, उनके लिए फायदे की बात है कि अब उनके लिए एक नई प्रैक्टिस शुरू हो रही है, खास करके इंडियन गोल्ड रिफाइनर के तौर पर, और BIS अप्रूव्ड और उसकी डिलीवरी अब NSE के प्लेटफॉर्म पर होगी। ये एक नई पहल की गई है NSE की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कामयाबी मिलेगी, और ये कामयाबी सिर्फ एक्सचेंज की नहीं होगी, सिर्फ NSE की नहीं होगी, ये हम सबकी कामयाबी इसलिए होगी क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और अगर हमारी अपनी रिफाइन की हुई गोल्ड अगर हम खरीदते हैं, हमारा अपना मार्क होता है, BIS का अपना मार्का होता है, तो इसका एक अलग ग्लैमर भी होता है स्वदेशी का। हम उम्मीद करते हैं कि इसे बहुत अच्छी कामयाबी आगे मिले। निशांत, मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो रहा है, ओवर टू यू। हाँ, लास्ट आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ये आपकी करने वाला है। यस Yes, sir. The last question. Hello. Yes, sir. The question is, what is the time given to participants post expiry of options contract to settle trade? वापस से मैं बताता हूँ question. What is the time given to participants post expiry of options contract to settle trade? And options are expiry plus 2, expiry plus 4, and expiry plus 6. ये आप पार्टिसिपेंट देख लें। सवाल एक बार फिर दोहरा रहा हूं मैं। व्हाट इज द टाइम गिवन टू पार्टिसिपेंट्स पोस्ट एक्सपायरी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट टू सेटल ट्रेड? ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सपायरी प्लस 2, एक्सपायरी प्लस 4 और एक्सपायरी प्लस 6। कितना वक्त दिया जाता है ये आपकी स्क्रीन पर है, और आप इसका जवाब दें और फिर हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे और उधर का अनाउंसमेंट भी होगा। The correct answer सर आया है, उनका नाम है मिस्टर विक्रम पंडित। ओके, कांग्रेचुलेशन मिस्टर पंडित, आपको सही जवाब के लिए और सबसे पहले जवाब देने के लिए, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अगर रवि जी हमारे साथ हैं तो मैं एक आखिरी सवाल उनसे हेडलाइन के लिए पूछना चाहता हूं, ताकि हमारे लिए खबर भी बन जाए, आगे हम इसको खबर के तौर पे इस्तेमाल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रवि जी हमारे साथ होंगे अभी। ओके सर, मैं आपसे एक छोटा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपने अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए, गोल्ड, मिनी, सिल्वर का भी आपने सितंबर को लॉन्च कर दिया है, तो छोटा कॉन्ट्रैक्ट अब आप कब लॉन्च करने वाले हैं? क्योंकि अभी 1 किलो का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट कब लॉन्च करने जा रहे हैं? इसके अलावा कुछ और नए प्रोडक्ट हैं कमोडिटीज में जिसको हम जल्द आपके प्लेटफॉर्म पर आता हुआ देखेंगे? छोटा कॉन्ट्रैक्ट का 1 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट का हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी कर दिया हुआ है, अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है हम लोग। अप्रूवल आते ही हम इसको लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हम कॉपर भी लॉन्च करने वाला है, और डीकम सोयल का एक कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर में लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हम बाकी एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी काम चल रहा है अभी, एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क चल रहा है अभी। इन नेक्स्ट 3-4 महीने में बहुत सारा नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे मार्केट में। ओके, तो 3-4 महीने में बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कमोडिटीज के NSE के प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। उसमें छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, एग्री के भी होंगे। ये एक नई बात रवि जी ने बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका इन तमाम पार्टिसिपेंट्स को अपनी आगे की योजनाएं बताने के लिए, और जो अभी एग्जिस्टिंग आपके पास जो टूल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, ये अलग अलग पैनलिस्ट ने बहुत ही डिटेल में समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, रवि जी आपका, निशांत आपका, नागेंद्र जी आपका, इस खास चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओवर टू निशांत। मृत्युंजय कुमार झा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इफेक्टिव मॉडरेट किया है पूरे सेशंस को। आई थिंक पिछले 1 घंटे में हमें बहुत सारी इंसाइट्स मिली है, बहुत सारी लर्निंग, नॉलेज और कई न्यू डेवलपमेंट्स आपने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने पेश किए। NSE की तरफ से ये पहल थी जहां पे हम हमारे स्टेक होल्डर्स और वैल्यू चेन पार्टनर्स को लेटेस्ट कमोडिटी इकोसिस्टम में जो भी नया चीज करना है, आप दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पैनलिस्ट मिस्टर मेहता साहब को, केडिया साहब, कुशल शाह साहब को एंड आबिद हसन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं धन्यवाद देता। सैटरडे के दिन उन्होंने अपना समय निकाल के इस प्रोग्राम को अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच।